Does your competitor get more traffic than you do? You Yeah, some gal baat thoughts ਕਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂ ਇੰਜ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਇੰਚ ਬਾਏ ਇੰਚ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬਾਏ ਦਿਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਅੱਖ ਸੈੱਟ ਕੱਢਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰ-ਬਾਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬੁਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦਵਾਰ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸ ਵਾਦੂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਬੇਟਾ ਸਾਧੂ ਮਨ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦੂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੀ ਕੋਰਸ ਪਾ ਦੂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਬੈਠਾ ਖੁਸ਼ਿਆ 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 ਬੈਠਾ ਖੁਸ਼ਿਆ ਬੈਠਾ ਖੁਸ਼ਿਆ ਚਾਰ ਪੀਸ ਵੀਰਾ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਨੇ ਦਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੋਡੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਰਾ ਹੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਪ ਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋਪ ਬੁਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਬਈ ਜੋਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਗਿਣਵਾਉਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਪੂਰਾ ਉਡਾਉਣਾ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਬੀਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪਾਤੇ ਭੋਗ ਨੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਸੰਜੋਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕ ਨੇ Everybody wants to be happy and suffer less. Maybe that's the problem. ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਬੈਠਾ ਖੁਸ਼ਿਆ 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 ਬੈਠਾ ਖੁਸ਼ਿਆ ਬੈਠਾ ਖੁਸ਼ਿਆ ਮੰਗਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੰਗਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੰਗਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਗਿਆ ਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੰਡਣਾ ਏ ਪਿਆਰ ਹਰੇ ਥਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੰਗ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਤੰਗ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਬਹਾਨਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਨਾ ਪੀ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦਬਾਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦਬਾਨਾ Hello guys, welcome back to your snow marketing session with Rose Learning. I'm your trainer Krantesh Singh. I welcome you to this online session. I hope you guys are able to hear my voice. Let me know in the chat box if you are able to hear my voice. I hope you are doing very best at your place. Also with your life. Okay, Vani. Good afternoon, everyone. Good afternoon. A very good afternoon to everyone. Okay. Some people are still joining us, so let me onboard them and then we will start the session. Good afternoon, everyone. Okay. How are you all, guys? How are you? How are you all, guys? Good noon, Gaurav. How you all doing?
Okay, so let's start this session from where we have left. I'm going to share my screen right now, and I hope are you guys able to see my screen so that we can continue the session? Let me know in the chat box. Okay, one. Okay, everyone. So in the previous session, we have seen some how to configure used plugin. Okay, so we have configured used plugin for the website, the spotfashion.co.in. Okay, this website is owned by Gaurav Prasad. Okay, so we are working on this on his website so that I can show everything from scratch. Okay, also I have added this website onto my Google Search Console. Okay, I hope you all guys are now aware of what is Google Search Console. Okay, so let me know in the chat box if you have understood my previous session. Okay, which I took on 17th June, or I think no, 19th June. Okay, so how many of you have understood the previous session? Let me know in the chat box. I just got a response from Vani Gaurav. Okay, Gaurav has raised his hand. Okay, what about everyone else? Have you guys not understood my previous session? Okay, Ankita has said just my hand. Okay, Shamli. Okay, so what I'm going to do now is I'm onto my Google Search Console and I will click on Start Now. Okay, so in the previous session, I have successfully added the website is spotfashion.co.in. Okay, also you can add any website by clicking on Add Property, and then you have to type the domain name. Okay, not the URL. You have to type the domain name. Okay, and then after typing your domain name, you have to verify your DNS. Okay, they will give you a smart snippet of text record that you have to add in your Cloudflare account. Okay, and then after your website get verified, successfully verified, your website is added to your Google Search Console. Okay, also to use Google Search Console, you need a Gmail account, which is mandatory for everyone. Okay, now after configuring the best SEO setting, I'm in the Yoast plugin part. Okay, so no. I have configured the configuration wizard and set all the things necessary. Now I will go to the feature section, SEO analysis. Everything is on. Okay, and then webmaster. Also, I have shown you from where to how to get this code. Okay, also even if you this code is automatically be shown to you after you successfully add your website to Google Search Console. So add your website to Google Search Console first, and then copy this code and paste it here. Okay, you do not have to upload the HTML file. Okay, you do not have to upload your HTML file. Sir, if I add new property, it will give me a new text record, right? Yes, Gaurav, it will give you a new text record, and I will delete your property from here, and then you can add it to your Google Search Console. Okay, so for demonstration purpose, I am showing you this. Okay, from scratch. After also Bing verification code. You also have to get a Bing's verification code. What is Bing's? Since Bing is Bing.com, if I go to Bing.com, Bing is a search engine from Microsoft. Okay, so Bing is a search engine provided by Microsoft. Okay, so if you want to add your website to Bing search engine, then also you can do the same procedure by clicking on this link. Then you have to log into Bing Webmaster Tool. Okay, Webmaster Tool. So what are Bing Webmaster Tool? So Bing Webmaster Tool are same as Google Search Console, which track your website, okay, in a manner like Google Search Console. So but Bing is not used as such. Okay, so if you want, you can add your website to this because I have added my website to Bing. Okay, so you have to click on Bing Webmaster Tool. Now you have to sign in with your sign in with your Microsoft account. Okay,
After signing with your Microsoft account, after doing all the procedure, you will get a verification code like similar to this, okay, that you have to paste here and then click on save changes. What is Yandex verification code? Yandex is similar to Yandex is a search engine. I think it's a Russian search engine also. Okay, so you have to create your Yandex account. After creating your Yandex account, you will gain and following all the steps step by step, you will get a no one. It is not mandatory, but if you want to rank on Bing search engine, then it is mandatory. Okay, if you want to rank on Bing search engine, it is mandatory to use Bing verification code. Okay, but most of the thing are now on Google. So in case you want to avoid that, you can avoid that. Okay, but if you want to learn the step by step process, then you can just click on this and follow the process. Okay, also same advice for Yandex verification code. So Yandex verification code is similar to this. You have to register on Yandex first and then step by step process, authorize your website, and then you will get a verification code similar to this. Okay, so I've told you about 3 of the major search engines available on the internet right now. Okay, but the major one is from which we will get traffic is Google. Okay, so I've shown you the step-by-step process how you can get this code. Okay, also how you can add your website to Google Search Console. Okay, so this part is I think you guys are very clear of this. Let me know in the chat box, type yes in the chat box if you have understood till here. Okay, okay, oh, awesome. Okay, now if I click on this, now if I click on search appearance under the SEO, under the SEO block, okay, if I click on SEO appearance, okay, so as I have mentioned in the configuration part, when we are configuring Yoast SEO for this website, I have selected the title separator as dash. Okay, so you can select any symbol. Okay, so like underscore, colon, dot, period, star, this star, pipe. Okay, this is what we call a pipe, and this is, I don't know what we do call it, but it's the first button in the number row. Okay, tilde I think इसको tilde कहते हैं इसको. Okay, then this left arrow, right arrow, I've shown you what is the title separator. Okay, okay, and I've shown you that this page is an organization. I have uploaded the logo. Okay, so you can change your website organization name, this part, content type. Now if I come on to the content part, so how, okay, what is content part? How can, तो यहाँ पर चीजें जैसे कंटेंट क्या होते हैं, आपके पास में आपके पेजेस हैं, ठीक है, और आपकी पोस्ट है. आप इन्हीं दोनों को रैंक कराना चाहते हो गूगल सर्च इंजन पे, इन्हीं दोनों में से किसी आर्टिकल को या फिर किसी पेज को. No Gaurav, we do not have to change logo from here. We have to change logo by going to the customize. Okay, appearance and customize. This is for the SEO part. Okay, if you want to define a new logo for SEO purpose, and that's it. Also keep in mind that both of the logo would always be same. It is good for Google so that your website has only a single logo. ओके, नाउ यहाँ पर देखो हमसे क्या हो रहा है, कंटेंट टाइप्स. आपके ब्लॉग के लिए 2 कंटेंट हो सकते हैं, या तो आप पेज बनाते हो या तो आप आर्टिकल लिखते हो. पेज हमेशा छोटे होते हैं और आर्टिकल हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है. अब देखो पोस्ट और पेज में आपको डिफरेंस पता है ही, ठीक है. अब देखो आप क्या डेट दिखाना चाहते हो. जब भी एसईओ में आपकी वेबसाइट सर्च की जाए, गूगल पे आपकी कोई वेबसाइट सर्च करेगा, जैसे कि कोई सर्च करता है, क्या सर्च करता है, ओके, आई ड्रॉप मान लेते हैं, आई ड्रॉप कोई सर्च कर रहा है, ठीक है. ना देखो ओके, एक एग्जांपल मुझे मिल गया है, ठीक है. अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है. अब देखो जो लास्ट के जो 2 रिजल्ट शो कर रहे हैं, एक तो है सस्टेन ड्राई आई सिम्टम रिलीफ ड्रॉप एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है. एक ये हो गया, ये देखो ये तो यूआरएल हो गई, ठीक है. ये तो यूआरएल हो गया कि ये यूआरएल है, ठीक है.
और ये भी एक यूआरएल हो गई, ठीक है। ये टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। मगर देखो डिस्क्रिप्शन के पास भी डेट आ रही है, जुलाई 31 तो 2018। But Gaurav, you can change. You can change the logo by going to the SEO. Okay. It it hardly matters. Okay. नाउ अब देखो यहाँ पर जैसे कि ये यूआरएल है जहाँ मैंने इसको इंसर्कल कर रखा है, ये यूआरएल है, टाइटल ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन के पास भी यहाँ पर डेट शो कर रहा है, मगर यहाँ डेट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेट कैसे इनेबल हुई है, ये चीज इनेबल हुई है हमारी, ये देखो, ये चीज, इस चीज को यहाँ पर हमें इनेबल कर देना है। अगर आपको डेट दिखानी है तो शो पे क्लिक कर दो, नहीं दिखानी है तो हाइड पे कर दो, ठीक है। तो मगर जनरली डेट दिखाना एक अच्छा अच्छा क्या कहते हैं इसको, अच्छा मेथड है, या फिर कह सकते हैं इट्स गुड टू शो डेट, ओके, सो दैट पीपल कैन नो फ्रॉम ऑन विच डेट यू हैव पोस्ट द पेज और you have written the article, okay. So this is good to show date in your Google search result. So आपने पोस्ट के लिए पहले कर दिया, इसको आप उनसे क्या कर दो, 10 पेजेस के लिए भी डेट आप शो कर दो, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर इसमें ये क्या स्निपेट्स होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कुछ स्निपेट्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो टाइटल होगा पेज का वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, पेज को फेच कर लेगा सेपरेटर और टाइटल, ठीक है। बट इसमें तुम क्या कर सकते हो, अभी मैं इसमें पेज को पेज 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 टाइटल, हाँ पेज को हम हटा देते हैं, ठीक है। पेज को मैंने यहाँ से हटा दिया है, टाइटल हमारा है सेपरेटर है, साइड टाइटल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेज का टाइटल रहेगा, ठीक है, कि हमारे आर्टिकल का टाइटल क्या है सेपरेटर, और फिर साइट का नाम रहेगा, ठीक है। ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, इसमें भी आप यही चीज़ कर सकते हो, देखो, ठीक है। ये चीज़ मैंने कर दी। अगर आप चाहते हो कि सभी पेज के लिए एक मेटा डिस्क्रिप्शन हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। मगर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, हर पेज के लिए अलग करेंगे तो कस्टमाइज रहेंगे हमारी चीज़ें, ठीक है। इस जो भी मैं सेटिंग करते जा रहा हूँ, ठीक है, वो बेस्ट सेटिंग है, क्योंकि मैं इसको करता ही रहता हूँ, तो फिर ठीक है। तो इसको मैं माई टेम्पलेट्स को मैं तीनों चीज़ें हाइड कर दूंगा, ठीक है, तीनों चीज़ें हाइड कर दूंगा। माई लाइब्रेरी में भी तीनों चीज़ें मैं हाइड कर दूंगा, बिकॉज आई डो नॉट वांट टू शो दीज पेजेस, ओके, दीज आर हिडन पेजेस। मेटा डिस्क्रिप्शन जो गूगल सर्च इंजन पे लिखा रहता है ना नीचे, देखो, जैसे कि आप सर्च करते हो कुछ भी, मान लेते हैं ब्रेड जैम, ओके। अब देखो ब्रेड जैम जैसे सर्च किया तो आपके पास में सर्च रिजल्ट आता है, तो ये जो लिखा रहता है ना, एक तो जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये आपका टाइटल है, जो नीचे लिखा हुआ है ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, ओके। सेपरेटर देखो, सेपरेटर जैसे ये देख रहे हो, ये सेपरेटर, एक सेकंड थोड़ा जूम करता हूँ, ओके अंकिता, ये देखो सेपरेटर देखो, ताकि हमें बार बार ना करना पड़े, इसीलिए सेपरेटर ऑटोमेटिकली लग जाए, इसलिए हम लोग सेपरेटर का एक टैग यूज करते हैं, ठीक है, यूज एसईओ के अंदर, ओके। ये देखो सेपरेटर है, यहाँ देखो डैश वाला सेपरेटर यूज कर रखा है, ठीक है। देखो इस तरह के सेपरेटर होते हैं ये, ठीक है। तो यू कैन यूज द वन यू वांट, ओके। yes, this is used by us only, yes। इसके हम बाद में सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। इसके बाद में मीडिया पे आते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो हमारी मीडिया है, ठीक है, इट मीन्स जो हमारे वेबसाइट की जो इमेजेस हैं, ठीक है, क्या वो आप चाहते हो गूगल पे शो करे, हाँ हम लोग चाहते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो, बिकॉज इमेज एसईओ के लिए भी हमारा काफी यूज होगा इसका, ठीक है। टैक्सोमनीज क्या होते हैं, कैटेगरीज, देखो टैक्सोमनीज वो जैसे कैटेगरीज, आप जब पोस्ट बनाओगे तो मैंने बताया था ना, कैटेगरीज का यूज करना है, पैरेंट कैटेगरी, और पैरेंट कैटेगरी के बाद में सब कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरीज भी एसईओ का एक पार्ट होती है, ठीक है, कि किस कैटेगरीज में आप ब्लॉग लिख रहे हो, तो उन कैटेगरीज को भी आप उन कैटेगरीज का भी एसईओ कर सकते हो। तो कैटेगरीज को आप दिखाना चाहते हो, यस, ठीक है, इसको हम हर चीज को हटा देते हैं, ठीक है। इसमें भी आप अपना एसईओ का टाइटल डिफाइन कर सकते हो थ्रू सम फ्री टेम्पलेट्स, ओके। और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल हैं, बट जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि आप साइट टाइटल रखो, ठीक है, टाइटल रखो, सेपरेटर पेज, पेज को हटा देते हैं, ये टर्म टाइटल या
एंड देन इसको करो, टैग्स को भी इसी तरह कर दो, ठीक है, आर्टिकल्स हटा दो, आर्चिव्स हटा दो, मतलब पेज को हटा दो, ठीक है, एंड देन शो करो। फॉर्मेट्स को आप फॉर्मेट्स और जितनी भी चीज़ें वैसी हैं उनको सब सेम जैसी हैं वैसी रहने दो, डू नॉट डू एनीथिंग। टैक्सोनॉमी के बाद आर्चीव्स, आर्चीव्स क्या होते हैं, जो बहुत पुरानी पोस्ट हमारी हो जाती है उन्हें हम आर्काइव्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो आर्काइव्स के रिजल्ट को आपको शो कराना है तो हाँ ठीक है, इसको शो करा दो। स्पेशल पेजेस, स्पेशल पेजेस क्या होते हैं, 404 पेजेस जैसे हो गया, ठीक है। अगर इसको आपको एसईओ करना है, इट मीन्स कि मान लेते हैं कोई हमारे कोई ऐसी यूआरएल बनी ही नहीं है मगर किसी ने टाइप कर दी है, तो वो कहाँ जाके लैंड करेगा, 404 पेज पे, इट मीन्स ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 404 एक एरर होती है, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में वो एक एरर होती है। ब्रेड क्रम्स, देखो ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, जैसे ब्रेड मैंने ये सब चीज सर्च की थी, ठीक है, ब्रेड क्रम्स इनेबल कर देना चाहिए। देखो ये जिसे देखो एक सेकंड और जूम करता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये हल्का सा ये शो कर रहा है, ठीक है, ये ब्रेड क्रम्स जो सिंबल शो कर रहा है ना, इसका मतलब ये ब्रेड क्रम्स ये होता है कि एक ये हमें वो देता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है। ये जो पेज है ये कहाँ से बना हुआ है, ठीक है, इस पेज का इस पेज का डायरेक्शन कहाँ पर है, या फिर किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, किस सब कैटेगरी में आता है, देन इसको आप शो करना चाहते हो, हाँ शो करना चाहते हैं, एंड देन जो भी चीजें हैं इनको ऐसे ही रहने दो, एंड देन क्लिक ऑन सेव चेंजेस। तो आप ब्रेड क्रम्स शो भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस। जैसा भी आपको अपना रिजल्ट चाहिए गूगल सर्च रिजल्ट पे, तो उस हिसाब से आप वो चीज़ को इनेबल कर सकते हो। ओके, ठीक है, ब्रेड क्रम्स हो गया। आरएसएस को आपको टच नहीं करना है, ठीक है, आरएसएस अभी इट्स ऑफ नो यूज एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सोशल पे, ठीक है। सोशल पे क्या है, अगर आपको कोई फेसबुक पेज यूआरएल है तो यहाँ पर डाल दो, ठीक है, यहाँ ट्विटर का यूजर नेम है तो वो डाल दो, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, माई स्पेस है, जो भी आपके पास में सोशल मीडिया पेजेस हैं उनका आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। फेसबुक ग्राफ वगैरह, फेसबुक ग्राफ डेवलपर्स के लिए सेटिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे जब भी आपके ब्लॉग से कोई चीज़ शेयर होगी, ठीक है, तो उसको ट्रैक करने के लिए हमें ओपन ग्राफ मेटाडेटा चाहिए होता है, बट अभी के लिए इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ट्विटर का भी ग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है, पिंटरेस्ट का भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर बस पेज इसकी यूआरएल डाल सकते हो। क्या गौरव, ओके गौरव, क्या तुमने अपनी वेबसाइट को दोबारा रिकॉन्फ़िगर किया था क्या वहाँ से, यूज टेस्ट यूज से, जनरल पे जाके? ओके ओके, देन इट्स ओके। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं एक ब्लॉग पे सिलेक्ट किया था, बट मुझे अभी ऑर्गेनाइजेशन पे शो कर रहा है, जैसे कि कहाँ गया, जैसे कि ये चीज़, ओके चलो ठीक है। आई थिंक नो नो नो, ओके आई थिंक मैंने ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया होगा, आई वाज जस्ट कंफ्यूज, ओके ठीक है ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है अकॉर्डिंग टू योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। देन अगर हम टूल्स में आते हैं, ठीक है, मुझे कितने लोग को साइट मैप समझ में आ गया था, व्हाट इज साइट मैप, व्हाट इज साइट मैप, साइट मैप कितने लोग को समझ में आ गया था, साइट मैप क्या किस लिए होता है, क्यों यूज होता है? ओके, साइट मैप के बारे में आई थिंक नहीं आया था, ओके ओके ओके, मैं चीज़ें फिर से बताता हूँ उसके बारे में। अब देखो, जब भी आप अपना यूज टेस्ट को कॉन्फ़िगर कर देते हो अच्छे से, उसके बाद में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका साइट मैप जो होता है, ठीक है, वो क्रिएट हो जाता है। और साइट मैप को एक्सेस करने के लिए क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट पे जाना है, आफ्टर इंस्टॉलिंग यूज एसईओ एंड प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगरिंग द spotfashion.co.in/sitemap.xml, ठीक है। अगर आप ये चीज़ टाइप करोगे sitemap.xml तो ये अपने आप खुल जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपका पोस्ट, जितने भी आपने पोस्ट बनाए होंगे, ठीक है, उन सारे पोस्ट की लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है।
जितने पेज बनाए होंगे उतने आपके पेज आ जाएंगे, देख रहे हो? ठीक है, अब देखो यहाँ पर गौरव ने एक गलती की है, ठीक है, उस गलती को मैं एक बार सही कर देता हूँ। इन्होंने क्या किया है, पोस्ट पे जाके एक ब्लॉग का पेज बना दिया है, फैशन ब्लॉग। ठीक है, और ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट मुझे यहाँ साइट मैप के अकॉर्डिंग में यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, spotfashion.co.in/blog। ओके, ठीक है, ठीक है, पेजेस पे आते हैं। ओके, सही है, सही है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, मुझे लगा इन्होंने क्या किया, पोस्ट में जाके एक ब्लॉग का पेज बना दिया है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी पोस्ट होंगी, ठीक है, उनकी 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 सारी लिंक यहाँ पर रहेंगी, और जितने भी आपके पेजेस रहेंगे उनकी सारी लिंक यहाँ पर रहेंगी। देख रहे हो, जैसे कि इन्होंने देखो, जैसे ये हो गया, अबाउट अस हो गया, प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विस टू कॉन्टैक्ट टू इंक्वायरी, ये सब इन्होंने पेजेस बना रखे हैं। ठीक है, तो एक पेज हम तो यहाँ पर हम किसी भी वेबसाइट का सारे के सारे पेजेस देख सकते हैं, और वो देख सकते हैं। ओके, ये सीएल आपने बनाया था ट्रेनिंग के सेशन में, ठीक है, कि कैसे बनता है ये। सो या ठीक है, अब देखो, जैसे मैं अपनी वेबसाइट को दिखाता हूँ, जैसे क्रांतेश.com पे जाओगे और /sitemap.xml टाइप करोगे, ठीक है। इफ आई एम यूजिंग योस्ट एसईओ, ओके, एंड आई हैव कॉन्फ़िगर्ड माय वेबसाइट यूजिंग योस्ट एसईओ, देन आप लोग देखोगे कि सिमिलर सा रिजल्ट देखोगे आप। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, अब देखो, जितनी भी मैंने पोस्ट लिखी होंगी, ठीक है, वो मेरे पोस्ट कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, देख रहे हो? ये देखो, देख रहे हो? जितनी भी मैंने आई थिंक मैंने 37 कुछ आर्टिकल्स वगैरह हैं ये लिखे हैं, तो ये इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, और जितने भी मैंने पेजेस बनाए हैं वो पेज कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। देखो, जितने पेज बनाए मैंने वो पेज कैटेगरी के अंदर आ गए। और जितनी भी कैटेगरीज बना रखी हैं, कैटेगरीज आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसे मैंने बुक्स, जिनके बारे में आप आर्टिकल लिखते हो, तो आपको आपको उनके लिए एक कैटेगरी चुननी पड़ती है। ओके, तो मैंने बुक्स पे कैटेगरी है मेरे पास, कैरियर, एजुकेशन, हेल्थ, हाउ टू इंस्पिरेशन, प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, और डब्ल्यू ए पी का मतलब होता है राइट ए प्रोग्राम। ठीक है, सो मैंने इन सब चीज़ों पे आर्टिकल लिखे हैं, और अब कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे इंस्पिरेशन, तो आपको वो सारे आर्टिकल मिल जाएंगे एक एक बार में, जिन आर्टिकल्स को मैंने उन कैटेगरी में उस कैटेगरी में ऐड कर रखा है। ओके, सो ये मेरी वेबसाइट हो गई, ये मेरी वेबसाइट के बारे में हो गया। ठीक है, आई होप अब आपको साइट में समझ में आ गया। इससे इजीली क्या होता है कि जब भी आपका गूगल का क्रॉलर आता है, मतलब गूगल अपना एक प्रोग्राम भेजता है हमारी वेबसाइट पे, जिसको हम क्रॉलर बोलते हैं, बॉट बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग नेम से बोलते हैं। जब भी वो हमारे वेबसाइट पे आता है, तो उसको इजीली सभी पेजेस के बारे में पता लग जाता है, सभी पोस्ट के बारे में पता लग जाता है, और वो एक एक करके सबको रीड कर लेता है। ठीक है, तो साइट मैप का ये फंक्शन होता है कि ये गूगल के लिए आसान कर देता है हमारी वेबसाइट को इजिली फेच करना और इजिली रीड करना, ताकि हमारा कंटेंट गूगल पे अप टू डेट रहे। ओके, अभी चीजें क्लियर हैं कि व्हाट इज द साइट मैप एंड व्हाट इज द इट्स रेलेवेंस इन गूगल सर्च इंजन। Okay, everything is sorry. Everyone is clear of the concept related to sitemap, because it's very important. Okay, to create sitemap on your website and then add it to your Google search engine. Okay, बाकी सबको भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, देन आई विल मूव अहेड। ओके, ओके, सो साइट मैप का बेसिकली इसीलिए यूज होता है कि ताकि गूगल हमारे वेबसाइट पे जब भी आए, तो उसको एक ऐसी लिंक मिल जाए, ठीक है, जहां पर वो जाके हमारे सारे पेजेस को रीड कर सके। ओके, अब हम बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं।
Yoast SEO को कॉन्फ़िगर करने में, ठीक है। इट्स द बेस्ट टूल अवेलेबल फॉर यूजिंग SEO। तो इस प्लगइन का भी आप यूज कर सकते हो। देयर आर अदर वेरियस टूल्स आल्सो अवेलेबल in the WordPress community, like rank math SEO, okay, you can use that as well, okay, but I prefer कि 5 million लोग इसी को यूज कर रहे हैं। तो सो इट विल बी गुड। अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। इनके एक्स्ट्रा टूल्स में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एंड इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, देखो इंपोर्ट सेटिंग फ्रॉम अदर एसईओ प्लगइन एक्सपोर्ट सेटिंग फॉर रीयूज लो। इसमें वो है कि मान लेते हैं आप कोई योस्ट की जो सेटिंग है, ठीक है, आपने कहीं ट्रांसफर करी है, अपना ब्लॉग किसी दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर किया है, तो अब इसकी योस्ट की सेटिंग भी ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि एक बार में ही सारी चीज़ें जैसी थी वैसे की वैसे हो जाएंगी। तो इससे आप भी चीज़ कर सकते हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब फाइल एडिटर, ठीक है, फाइल एडिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है गाइस, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। बहुत यार देखो, यहाँ पर देखो एक htaccess फाइल होती है, ठीक है। htaccess फाइल क्या होती है, ये रूट फोल्डर में जहाँ पर हमारा ब्लॉग होस्टेड है, ठीक है, वहाँ पर ये फाइल होती है। इसको आपको छेड़ना नहीं कभी भी, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू मेंडल विद दिस फाइल एट ऑल, ओके, बिकॉज अगर ये चेंज हुआ तो हो सकता है आपकी वेबसाइट सही से होस्टेड है वो सही से होस्टेड ना रहे और चीज़ें बिगड़ जाएं, ठीक है। बिकॉज बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट फाइल। अगर आप चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं हो, देन डू नॉट टच दिस फाइल। इफ यू आर अवेयर देन यू कैन गो अहेड, ओके। नाउ यहाँ पर देखो robot.txt फाइल क्या होती है। robot.txt फाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस पर हम दोबारा भी आएंगे। robot.txt फाइल वो फाइल होती है जब भी गूगल के क्रॉलर्स आएंगे, ठीक है, जब भी गूगल के क्रॉलर्स आएंगे हमारे होस्टिंग पे या फिर हमारी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, तो robot.txt फाइल वो पहले रीड करेंगे और robot.txt फाइल में लिखा होगा कि गूगल डू नॉट ट्रैक दीज पेजेस, ओके, और डू नॉट शो दीज पेजेस ऑन गूगल सर्च इंजन, ठीक है। तो पहले तो अभी तो इनकी रोबोट इस वेबसाइट के लिए robot.txt फाइल बनी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके लिए एक फाइल बनाएंगे। तो जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, यूजर एजेंट डिसअलाउ, ओके। सो हमें क्या करना है, डिसअलाउ। तो डिसअलाउ का मतलब क्या है कि डिसअलाउ कि WP एडमिन का जो लिंक है इसको आपको ट्रैक नहीं करना है। गूगल से ये कह रहा है, मतलब हमारे जो robot.txt फाइल है गूगल के क्रॉलर से कहेगा या गूगल के बॉट से कहेगा कि यू डू नॉट हैव टू शो दीज पेजेस ऑन टू गूगल सर्च इंजन, ठीक है। तो robot.txt फाइल का काम ये होता है। तो यहाँ पर आप और भी लिंक्स ऐड कर सकते हो, बट हम लोग अभी ऐड नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रखेंगे, बिकॉज इट्स नॉट नीडेड एज ऑफ नाउ, ठीक है। और ये हमारा योस्ट प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हमने करना सीख लिया है अच्छे से, ठीक है। योस्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बाकी सारी चीज़ें। अब इसका प्रीमियम वर्जन भी आता है, ठीक है, योस्ट आपको रिकमेंड करेगा, बट सिंस यू आर स्टार्टिंग वी कैन गो विद द फ्री वर्जन ऑफ योस्ट SEO एंड डू आवर वर्क, ओके। Okay, so you don't have to worry about purchasing this SEO premium until unless your blog is very big or having a millions of visitors, or you're running out of content or something like this, okay, happen, okay. Now I will talk about on page SEO, okay. So I was on this article, top 10 cool glasses to sunglasses styles for summer 2020, okay. तो हम लोग ये आर्टिकल लिख रहे थे, ठीक है। इस आर्टिकल को, अच्छा आर्टिकल को लिखने के लिए और सारी चीज़ें में देखो यहाँ पर एक बार आ जाते हैं, ओके। अब देखो SEO का ऑन पेज आपको बता देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो ये कि ग्रेट कंटेंट विद यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। आप ब्लॉगिंग या फिर आप ब्लॉगिंग जो करते हो, ठीक है, जो भी आर्टिकल लिखोगे वहां पर आर्टिकल का मेन ये होता है कि एक तो अच्छा कंटेंट हो और दूसरा ये हो कि आपका यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो। इट मीन्स कि वो जो भी आप चीज़ उनको बताना चाहते हो, ठीक है, वो अच्छे से उसको समझ में आए।
ओके, सो ग्रेट कंटेंट विद यूजर एक्सपीरियंस, इट मींस दैट कि भाई स्क्रीन का जो फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट साइज है, वो सही होना चाहिए। और पेज लोड स्पीड, की पेज कितनी जल्दी लोड हो रहा है, ठीक है। अगर पेज बहुत टाइम लग रहा है लोड होने में, तो भाई ये चांसेस हैं कि जो हमारा यूजर है वो हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं करेगा। यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आफ्टर पब्लिशिंग, आफ्टर राइटिंग दिस आर्टिकल, आफ्टर दिस राइटिंग दिस टाइटल, यू कैन एडिट दिस स्लग। ओके, हमने लास्ट टाइम भी स्लग किया था कि ये यूजर फ्रेंडली हो जाए, सन ग्लासेस स्टाइल्स फॉर समर। सो ये हमने क्या कर लिया था, ये हमने इसको एडिट करके छोटा कर दिया था, ठीक है। तो आप भी जितने भी आर्टिकल्स कभी लिखोगे तो उनका जो स्लग है वो छोटा कर देना है आपको, ठीक है, उनको बड़ा नहीं रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूजर फ्रेंडली यूआरएल होना चाहिए, ठीक है, और ताकि वो इजीली रीडेबल हो, सोशल मीडिया पे भी जब भी शेयर करें तो वो इजीली रिमेम्बरेबल हो। ओके, तो इसको आपको छोटा रखना है, मे बी 3 to 4 वर्ड्स, दैट्स इट। ओके, अब देखो इसके बाद में हम लोग आते हैं टाइटल टैग क्या होता है। देखो यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है, शॉर्ट होना चाहिए, और आपकी यूआरएल में ही आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। यू हैव टू ट्राई इन ए लॉजिकल मैनर कि आपकी जो स्लग है, देखो यहाँ पर स्लग, मान लेते हैं मैं सन ग्लासेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाई सन ग्लासेस जो मेरा कीवर्ड है वो पॉसिबल हो तो आप उसको अपने स्लग में रखो, अगर वो लॉजिकली पॉसिबल हो तो, ठीक है। इसके बाद में आपको अपना कीवर्ड जो है, जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हो, ठीक है, वो कीवर्ड आपके टाइटल में भी होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कूल सनग्लासेस स्टाइल्स, इस पे मैं रैंक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको लॉजिकली, ठीक है, और ग्रामरली, इन दोनों तरीकों से इसको अपने टाइटल में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने एक आर्टिकल देखा था, उस पे उसका ही हम लोग रेप्लिका आर्टिकल यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जी टॉप 10 कूल सनग्लासेस स्टाइल्स फॉर समर 2020। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर जॉब प्रोफेशनल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर बिजनेस ओनर या कुछ भी, जैसा भी आपको, जिसके बारे में भी आपकी ऑडियंस हो, ठीक है, उसके साथ में। अब देखो आपके यूआरएल से कीवर्ड इनरिच होना चाहिए आपका, तो भी अंडरस्कोर यूज ना करो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि अंडरस्कोर यूज करते हैं, सनग्लासेस अंडरस्कोर स्टाइल्स फॉर समर, ठीक है, तो ये चीज नहीं, इनको डैश यूज करना है, ठीक है। डैश इज द बाय डिफॉल्ट गुड क्राइटेरिया ऑफ यूजिंग यूआरएल स्लग। अब देखो टाइटल टैग में क्या मैंने बताया था, टाइटल टैग मतलब कि ये टैग, ठीक है, इसमें आपका कीवर्ड इमेज होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन पे आएंगे, ठीक है। आफ्टर राइटिंग दिस होल आर्टिकल वी विल राइट इट्स मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं बता देता हूँ। पहले हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिखा जाता है वो चीज़ देखते हैं पहले। तो सबसे पहले एक आर्टिकल हम लोग इसी ढूंढ लेते हैं, ठीक है, उसी का रेप्लिका यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। वैसे तो बहुत समय लगता है आर्टिकल लिखने में। सनग्लासेस, कूल मैन सनग्लासेस, देखो अगर मैं इस आर्टिकल पे आता हूँ, देखो इन्होंने भी कितना अच्छे से कर रखा है, इनका जो यूआरएल स्लग है वो कितना अच्छा है, बेस्ट सनग्लासेस फॉर मैन, ठीक है। इन्होंने अपने आर्टिकल में ही और अपने यूआरएल स्लग में ही वो चीज़ कर रखी है, ठीक है। जो चीज़ हम कर रहे थे इसको कहते हैं कीवर्ड इनरिच भी है, शॉर्ट भी है, ठीक है, ये चीज़। अब देखो इन्होंने पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है और साइड में गूगल एड्स भी चल रहे हैं। अब देखो द 35 बेस्ट मैन सनग्लासेस बाई बीयू हायोए हायोए। ओके, देखो इन्होंने कितना पहले तो इन्होंने स्टार्टिंग दिया है आर्टिकल के बारे में कि क्या है, देन एक इमेज लगाई है। इट्स अ वेल रिटन आर्टिकल, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या है, शॉप नाउ का बटन दे रखा है, ताकि कोई भी जाके इनकी वेबसाइट से, ठीक है, या फिर इन्होंने अगर किसी को रिफर कर रखा है, ठीक है, किसी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट को, देन आप वहां से खरीदोगे तो इनको कुछ कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज भी हो सकती है। इट देखो इन्होंने हर हर टाइप ऑफ सनग्लासेस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, एंड देन बोल रहे हैं शॉप नाउ, एंड देन बोल रहे हैं शॉप नाउ, ठीक है। ओके, उन्होंने काफी बड़ा आर्टिकल लिखा है, ठीक है, काफी इन डेप्थ आर्टिकल है। इट्स ओके एंड देन इट एंड्स, ओके। तो अगर हम यहीं से कुछ चीजें यहाँ से तो
ये तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिकल हो गया, हमें इतना बड़ा आर्टिकल नहीं चाहिए। Okay, Rishabh, I will answer your question at the end of the session, okay? So do not worry about that. Okay, ये देखो, ये आर्टिकल अच्छा है, ठीक है। 6 कूल सनग्लासेस स्टाइल्स फॉर समर 2020। ओके, सो यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में ये तो मैंने थोड़ा सा वो दे दिया, थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया कि इस आर्टिकल में क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सटर्नल लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो दूसरे वेबसाइट पे जाके लैंड हो रहे हैं। यहाँ भी दूसरे लिंक्स लगे हुए हैं। ओके, अब देखो ये एक हेड, ये क्या है, ये एक हेडिंग है, ठीक है। ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। ये जो ज्यादा बोल्ड में है, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, देन फिर हो सकता है उसकी सब हेडिंग हो, ठीक है। जिस तरह से हम लोग एक आर्टिकल लिखते हैं उसी तरह से है। देखो, फिर ये एक हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है। अब देखो मैं इसको कैसे बनाता हूँ। ये थोड़ा सा मेरा क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड देन मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद में मैं आऊंगा अल्टीमेट एड ऑन ब्लॉक, ठीक है। और मैं इस पे आता हूँ, मैं इस पे लिखता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट को आपको टच नहीं करना है, ठीक है। ये अपने आप बनता रहता है, इसमें आप कंटेंट नहीं लिखते हो, ठीक है। जैसे ही आप एक हेडिंग डालते हो, जैसे कि मैं डालता हूँ एक हेडिंग, हेडिंग, ठीक है। अब देखो हमेशा आप क्या करोगे, जो पेज का मेन हेडिंग होती है वो आपका पेज आर्टिकल का टाइटल ही होता है। मतलब दिस विल बी योर H1 टैग, दिस विल बी योर H1 टैग, इट विल टेल द गूगल कि दिस दिस आर्टिकल इज अबाउट दिस H1। ओके, सो H1 टैग हमारा गूगल को बताता है कि आपका ये किस के लिए आर्टिकल है ये, ठीक है। किस चीज के बारे में ये आर्टिकल है, पूरा का पूरा ये चीज बताता है। ओके, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, हमारे पास बचा, और कभी भी H1 टैग रिपीट नहीं होता है। एक आर्टिकल में H1 टैग रिपीट नहीं करते हैं, मतलब 2 बार यूज नहीं करते हैं H1 टैग, ठीक है। बिकॉज H1 टैग मेन टैग होता है किसी भी पेज के लिए, और वो बताता है कि ये पेज किस चीज के बारे में है। ओके, तो हम H2 टैग पे करते हैं। H2 टैग पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, हम लोग डाल सकते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको हम डाल सकते हैं इसमें, हाउ टू पिक अ सनग्लासेस स्टाइल, हाउ टू पिक अ सनग्लासेस स्टाइल फॉर योर फेस शेप, ठीक है। ये पहला हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से कंटेंट लेते हैं। एक्चुअली जो अभी मैं ये कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ, बट यू हैव टू राइट ऑल दीज बाय योरसेल्फ, ओके। जब भी मैं आईपी आर्टिकल लिखता हूँ तभी मैं भी सारे चीजें खुद से लिखनी पड़ती है, ठीक है। यू हैव टू गिव अ रफ स्केच फर्स्ट, देन यू हैव टू रिमूव ऑल दोज ग्रामर मिस्टेक and make it in plain English so that audience can easily। ओके, अब मान लेते हैं कि हाउ टू पिक अ सनग्लासेस फॉर स्टाइल फॉर योर शेप के अंडर में एक और हेडिंग है जिसको सब हेडिंग कहेंगे, ठीक है। और उसको हम लोग हेडिंग बनाएंगे, मगर हेडिंग H2 नहीं होगी, वो हेडिंग होगी H3 होगी, ठीक है। H3 हेडिंग बनाने के बाद में यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, जैसे जैसे हम इसको बनाते जाएंगे, देखो इसको कॉपी किया, देन उसको पेस्ट किया, ठीक है, ये हो गया। अब बीच में मान लेते हैं मुझे कोई इमेज लगानी है, ठीक है, तो इमेजेस भी लगा सकते हो आप, मगर पहले हम थोड़ा कंटेंट डाल देते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इमेज भी लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ हेडिंग में, और ये हेडिंग हमारा 3 हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज हेडिंग 2 हमारी ये है, ये आप देख रहे हो। अब देखो टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हमारे हेडिंग के अकॉर्डिंग बनता जा रहा है, ठीक है। वो हमारे हेडिंग के अकॉर्डिंग बनता जा रहा है। हाउ टू पिक सनग्लासेस स्टाइल्स फॉर योर शेप पहला था, ये बन गया, ये S2 टैग था। उसके नीचे हमने क्या किया, S3 टैग किया। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप वहां पर चले जाओगे, जब भी आप ऐसे आर्टिकल पब्लिश करोगे तो उस टॉपिक पे तुरंत चले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए लोग टेबल ऑफ कंटेंट यूज करते हैं। और विकीपीडिया में भी यही चीज, सेम चीज यूज होती है गाइस। विकीपीडिया में भी जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ोगे, इट मीन्स दैट इफ यू आर रीडिंग अबाउट इंडिया, ओके, लेट मी जस्ट से इंडिया, अगर आप इंडिया के बारे में सर्च कर रहे हो विकीपीडिया खुल जाएगा, ठीक है।
क्योंकि पीडीएफ खुलने के बाद में इनका टेबल ऑफ कंटेंट होगा। देखो पहले तो थोड़ा बहुत इन्होंने बता दिया इंडिया के बारे में, ठीक है, कि भाई इंडिया का क्या छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, एंड देन कंटेंट। देख रहे हो कंटेंट ये किस में आ रहा है? फर्स्ट इटिमोलॉजी, हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर एशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, अर्ली मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो हिस्ट्री के 4 भाग हैं, ज्योग्राफी है, बायोडाइवर्सिटी है, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे क्लोथिंग पे क्लिक किया तो मैं क्लोथिंग पे आ गया, ठीक है। तो क्लोथिंग पे आने का सेंस कि क्या हुआ कि क्लोथिंग पे तुरंत आ गया, मैं वहां से स्क्रॉल मुझे नहीं करना पड़ा इतना, ठीक है, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर जस्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई वांट टू रीड अबाउट, ओके। तो मैंने तुरंत परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड मीडिया पे क्लिक किया। तो इसीलिए हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट यूज करते हैं ताकि जो हमारा यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी फास्ट हो पाए, ओके। एंड देन आपको ये चीज करनी है, फिर आपको एक एंटर देना है, देन एक और आपको देखना है। इसको पैराग्राफ में, ये ऑटोमेटिकली पैराग्राफ में पेस्ट हो गया, बट मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ यहाँ से हेडिंग में, और यहाँ पर H2 नहीं भाई H3 कर दो, ठीक है। एंड देन एक पैराग्राफ के लिए हम लोग एंटर ले लेंगे, या ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आई थिंक इतना हो गया, ठीक है, इतना बहुत हो गया, चार चार चीज होगी। इसी तरह आप अपने आर्टिकल को और लंबा कर सकते हो और पॉइंट वाइज कर सकते हो, बिकॉज इट विल इजियर टू कॉम्प्रीहेंड बाय द ऑडियंस, ओके। एंड देन अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है, देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस बटन, इमेज, ओके, अपलोड। अगर आपके पास में कोई इमेज है तो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। KC Neistat, ओके। तो ये इमेज अच्छी है, ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करके वहाँ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरह से मैंने ये आर्टिकल के लिए यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर डालता हूँ KC Neistat यूट्यूबर, ठीक है, ये ही इज ए यूट्यूबर, ओके। अब देखो ये चीज़ हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पर एक इमेज डाल दी है ताकि चीज़ें और समझ में आए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे एक और बड़ा सा, अब देखो, द सन ग्लासेस ट्रेंड्स यू नीड टू नो अबाउट राइट नाउ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, हेडिंग पे जाता हूँ, मगर हेडिंग पे मैं इस बार H2 करूंगा, ठीक है, बिकॉज नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टॉपिक, ओके। नाउ इज दिस डिफरेंट टॉपिक हैज मेनी सब टॉपिक्स, okay. So again now I will copy this whole section because I am writing an article, okay. But you guys do not have to copy this, okay, because I cannot just write in front of your eyes a whole article. That's why I'm just copying and pasting, so that you can have an idea about how to create content in a manner which is SEO or organized, you can say, okay. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, टेबल ऑफ कंटेंट में अपने आप में ही जिस तरह के आप हेडिंग टैग्स यूज करोगे, ठीक है, और सब हेडिंग टैग यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें बन जाएंगी, ओके। ये हो गया। आप इमेजेस भी ले सकते हो, ठीक है। अब अगर आपके पास तो क्लिक्ड इमेजेस हैं तो आप वो भी चीज ले सकते हो, या एंड देन अब मान लेते हैं उसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड। अब देखो ये हमारा आर्टिकल आ गया, ठीक है। ये आर्टिकल आ गया 10 स्पॉट फैशन का, साइड में एक साइड बार आ रही है, टॉप 10 क्रूशियल ग्लासेस फॉर समर स्टाइल फॉर मैन। अब देखो देख रहे हो ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, इस पर मैं क्लिक करूंगा मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो तुरंत मैं नीचे आ गया। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट का ये यूज है गाइस, ठीक है, कि आप जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हो, ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे तुरंत उस पेज पे नीचे आ जाओगे, जैसे कि एक मैंने आर्टिकल लिखा था कि हाउ टू परचेज होस्टिंग फ्रॉम साइड ग्राउंड, ठीक है। ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट है, चूज द होस्टिंग प्लान, स्टार्टअप होस्टिंग प्लान,
मैंने भी टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर बनाया था और उसके बारे में पूरा, क्योंकि पूरा का पूरा डिटेल आर्टिकल मैंने लिखा था, ठीक है, कि कैसे आप होस्टिंग प्लान चूज करोगे, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। स्क्रीनशॉट लगाने के बाद मैंने उसके बारे में लिखा है कि क्या क्या होती है, क्या क्या प्राइसिंग है, ठीक है, मेरे पर्सनल रिव्यूज क्या हैं, ठीक है, बीच में मैंने स्टिकर लगा दिया एक, ठीक है, ग्रोबिक होस्टिंग प्लान क्या होता है, फिर मैंने स्टिकर यूज किया है, एक बैनर यूज किया है, ठीक है, साइड ग्राउंड का। देन ये क्या होता है, ये क्या होता है, फिर देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने परचेजिंग के भी चीजें कर रखी है, एंड देन अब मैंने एंड कर दिया, ठीक है। इफ यू नीड एनी हेल्प और सजेशन यू हैव, यू कैन जस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप एक डिटेल्ड आर्टिकल लिख सकते हो। और भी मैं दिखाता हूँ आपको वर्डप्रेस के बारे में भी। मैंने एक चीज, वर्डप्रेस कहाँ गया, यहाँ पर सर्च मैंने बॉक्स दे रखा है कि अगर आपको सर्च करना है, ये देखो एक आर्टिकल मैंने लिखा था, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट, ठीक है। तो ये काफी डिटेल आर्टिकल था, इसमें मैंने टेबल ऑफ कंटेंट यूज नहीं किया है, ठीक है। देखो मैंने पहले तो सबसे पहले बारे में बताया कि व्हाट इज वर्डप्रेस, होता क्या है, और आपको वर्डप्रेस यूज क्यों करना है, व्हाई वर्डप्रेस, ओके। मैंने इन चीज़ों को पहले बात किया, एंड देन फिर मैंने थोड़ा टेक्निकल जो जैम्प एक होता है, ठीक है, इसके बारे में बात किया मैंने, कैसे इंस्टॉल करना है, फिर मैंने ये चीज़ डाली, ठीक है। फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे सारे प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है, और फिर उन स्क्रीनशॉट को पेंट पे जाके एडिट किया था, एंड देन उसको यहाँ पर लेबलिंग की थी, ठीक है। यहाँ मैंने कैप्शन किया इमेज का, ये सारी चीज़ें। इसी तरह इसी तरह पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने लिखा, ठीक है, और बीच बीच में उनके स्टेप के बारे में चीज़ें लिख दिया, एंड देन इट गॉट कवर्ड, ओके। सो इसी तरह आप कोई भी आर्टिकल लिखोगे ना इंटरनेट पे कहीं पर भी, ठीक है, जैसे कि आप हाउ टू इंस्टॉल अ प्लगइन मान लेते हैं, हाउ टू इंस्टॉल अ प्लगइन, सिंपल सा, ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल अ प्लगइन इन वर्डप्रेस। देखो ये एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को मैं ओपन कर लिया, ओके। अब देखो ये पूरा का पूरा आर्टिकल आ गया, राइट हैंड साइड पे साइड बार है, ठीक है, और ये बीच में हमारा पूरा आर्टिकल है, ठीक है। तो देखो पूरा का पूरा बिफोर यू स्टार्ट, देखो यहाँ पर इन्होंने वीडियो डाल दिया है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन्होंने वीडियो भी डाल दिया है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप एक वीडियो और इमेजेस के यूज दोनों करके आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है, अपने नीश में। देखो उन्होंने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, और भी इन्होंने चीज़ें चीज़ें बताई होंगी एडिशनल। अब देखो ये भी आर्टिकल बहुत अच्छा है, अगर थोड़ा इसकी सेटिंग करेंगे तो इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा करके और आर्टिकल ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसमें और भी काम करने की ज़रूरत है गौरव, ठीक है। इसमें इनके फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें। अब देखो वीडियो वीडियो कैसे करते हैं अपलोड, वीडियो बता देते हैं। वीडियो हम अपलोड नहीं करते हैं, वीडियो हम लोग इम्बेड करते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर हम वीडियो अपलोड करेंगे तो होगा क्या कि हमारे साइट पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा। देखो यहाँ पर आपको जाना है, उससे पहले तो आपको आपको वीडियो अपना अपलोड कर दो किसी पे भी। जैसे कि मान लेते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे आता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो सेलेक्ट करता हूँ जो भी आपको अपने एम्बेड करना हो। ठीक है, जैसे कि ये एक वीडियो है, ठीक है, मैं इस वीडियो के बारे में, Hungry for new backlinks for your website? Use Backlink Analytics. अब इस यूट्यूब वीडियो पे आने के बाद में हमें क्या करना है, इस पे 3 डॉट्स पे यहाँ पर है, 3 डॉट पे यहाँ पर क्लिक करना है। अब 3 डॉट पे यहाँ पर क्लिक करने से कुछ नहीं हुआ, मुझे इसको एम्बेड करना है, ठीक है। सो what you guys have to do is, I'm using a plugin, okay Gaurav, no I do not have to, yeah, I will click on share, okay, I do not have to I think अभी इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, let me just copy the link and paste it, I think वो अपने वहाँ से fetch कर लेगा। ठीक है, तो मैंने वहाँ से कॉपी लिंक और वो चीज़ कर दी, तो ये चीज़ हो गया।
ठीक है, इट्स गुड, ओके। मगर आपको अगर इम्बेड करना है, इम्बेड एक चीज अलग होती है, ठीक है। एम्बेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम, देखो एम्बेड यहाँ लिखा है ना, कॉपिंग एम्बेड, हाँ ठीक है। एम्बेड का क्या प्रॉब्लम यूज ये होता है कि आप ये चीज डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, कि आपको वीडियो किस सेकंड से स्टार्ट करना है। आप लिंक तो शेयर कर सकते हो, लिंक शेयरिंग इज वेरी इजी आयुष, ठीक है। बट जब आप एम्बेड किसी वीडियो कर लेते हो तो आप उसका फ्रेम, हाइट, विड्थ, ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। तो इनेबल इज द, एम्बेड इज द गुड ऑप्शन टू ट्राई। तो मैंने यहाँ पर एक ये इमेज, ये भी कर दिया है, ठीक है। मगर अब इसको ऐसे कि मुझे एम्बेड करना है, तो एम्बेड करने के लिए प्लस पे क्लिक करके HTML पे जाओगे, HTML कस्टम HTML पे, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो कोड कॉपी किया था एम्बेड का वो पेस्ट कर दोगे, ठीक है, एंड देन आउट, ठीक है। अब देखो, अब इसका जो प्रीव्यू करोगे तो चीज़ें सेम टू सेम होंगी, बट इफ यू वांट टू डू एनी चेंजेस यू कैन जस्ट go to embed and change the settings, okay, for like 560 से आपको हाइट बढ़ानी हो, छोटी करनी हो, इट्स योर ओन चॉइस, ओके। जैसे कि तो या बोथ द थिंग्स वर्क इन सेम मैनर, ठीक है। अब इस तरह से आपने यहाँ पर एम्बेड कर दिया, ठीक है, अपने इसको अपडेट कर दो। इस तरह से हम लोग वीडियो भी कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे वीडियो पे एडिट हो जाते हैं। अगर आपको अपलोड भी करना है तो आप वीडियो लिख सके यहाँ से, तो वीडियो लिखा, और वीडियो लिखने के बाद में आप कोई वीडियो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, ओके। देखो जैसे ये वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया तो ये वीडियो हमारे सर्वर पे ही आ गया, ठीक है। इस तरह से अपडेट कर देते हैं एंड देन इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, ओके। सो इन दिस मैनर यू कैन जस्ट अपलोड बाय डिफॉल्ट वीडियो, बट अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो काफ़ी लोड पड़ेगा वेबसाइट पे, ठीक है। तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। आप लिंक शेयर करो, ठीक है, दूसरे यूट्यूब वगैरह के, तो इट विल वर्क इन सेम मैनर, ओके। इसके बाद में हम लोग आर्टिकल लिखने के बाद में, ठीक है, वेल रिटन आर्टिकल, पूरा अच्छा इन डेप्थ आर्टिकल जिस तरह से आप लिखना चाहते हो, ठीक है, इट्स योर ओन चॉइस, कैसे भी करो, बट एक उसको एक सीक्वेंस दो चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक है, चीज़ें ग्रैब हो सके। अब देखो, यहाँ देख रहे हो, जब हम इस पे क्लिक करेंगे एडिट स्निपेट्स पे, ठीक है, मैंने क्या किया, एडिट स्निपेट पे क्लिक किया, मैं पूरे पेज के सबसे नीचे आया हूँ, मैं सबसे नीचे आया हूँ पेज के, और जहाँ पर लिखा है ना यूज्ड एसईओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ क्या 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 चीजें हमसे कह रही है, हमसे कह रहा है कि भाई फोकस की फ्रेज क्या है आपका, इसका मतलब ये है कि इस आर्टिकल के लिए आप किस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हो, ठीक, किस कीवर्ड को लेकर आप अपनी रैंक करना चाहते हो, या फिर किस कीवर्ड को लेकर आप फोकस्ड हो। तो मैं लिख देता हूँ कूल, सॉरी कॉल हो गया, सन ग्लासेस, ठीक है, कूल सन ग्लासेस। तो अगर मैं सन ग्लासेस पे सिर्फ करता हूँ, मान लेते हैं, ठीक है, कूल सन ग्लासेस के लिए इसका ऑरेंज आ रहा है, देख रहे हो ना, इसका फेस ऑरेंज हो गया है, ठीक है। मगर हमें इसको ऑरेंज नहीं, हमें करना है ग्रीन, रेड हो गया, ठीक है। मे बी जो ये पेज है, ठीक है, इसके हमारा सही से अभी आर्टिकल लिखा नहीं गया है, ठीक है। आर्टिकल को सही से इस कीवर्ड के लिए, क्योंकि ये कीवर्ड जितना लॉजिकली यूज किया जाएगा हमारे आर्टिकल के अंदर, उतना ही हमारा ये रीडेबिलिटी बढ़ेगी हमारी, ठीक है। हमारी देखो रीडेबिलिटी कितनी कितनी बेकार आ रही है, इसका मतलब ये टेक्स्ट कंटेन 3 consecutive sentences starting the same word, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं ये वर्ड consecutive sentences का प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, इसका मतलब ये है कि कुछ पैराग्राफ जो हैं वो एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखते हैं, ये इसको हटा देते हैं, yes, yes we can
use more than one focus keyword, but it's not a good idea to use that. Okay, if you want to rank your page for multiple keywords, but Yoast, in the free version of Yoast, you only get a you only get a chance to return only one focus key phrase. Okay, so in the premium version of Yoast SEO, you can add multiple keywords for which you want to rank, but those keywords have to be similar to each other. Okay, okay. ओके, अभी देखो, अभी हमें क्या दे रहा है, 34.2 ऑफ द सेंटेंसेस कंटेन मोर देन 20 वर्ड्स। अब देखो, चलो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इट्स अभी मैं, अब जो मैंने कुछ ब्लॉग लिखे हैं, ठीक है, उसके बाद उनको मैं देख लेता हूँ, ठीक है, और उन पे चीज़ें देख लेते हैं। अब देखो, मैंने एक ब्लॉग लिखा था, क्रिटिकल स्किल्स टू लर्न इन 2020। तो देखो, मैंने थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, फिर कोडिंग मैंने लिखा कि कोडिंग के बारे में क्या है, कम्युनिकेशन हो गया, नेगोशिएशन, अडेप्टेबिलिटी, वेब डिजाइन, कंक्लूजन, ठीक है। और अब देखो, इसकी रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि कंजिक्यूटिव सेंटेंसेस सही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आपको एक अच्छा कंटेंट राइटर बनना पड़ेगा, ताकि जब आप आर्टिकल लिखो तो आपके पास में ये चीज़ें, सब चीज़ें, आपकी रीडेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई फोकस की फ्रेश सेट नहीं किया है, बट अकॉर्डिंग टू यूज मेरी आर्टिकल की रीडेबिलिटी अच्छी है। ओके, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्रिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल, स्पेलिंग सही है, नहीं सही है, ओके, तो वो ऑरेंज आ रहा है अभी, ठीक है। तो ऑरेंज एसईओ का मतलब है कि इट्स गुड, ठीक है। ऑरेंज एसईओ का मतलब है इट्स गुड। अगर मेरा ये रेड आता तो एटलीस्ट एसईओ के परस्पेक्टिव से मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो मेरे आर्टिकल से मैच नहीं करता है। ओके, ये मीनिंग है इसका। ओके, इसके बाद में आपको रीडेबिलिटी अपनी सुधारनी है, ठीक है, बाय यूजिंग वेरियस पैराग्राफ्स एंड रिलेवेंट कीवर्ड्स। तो इसके लिए आप बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, अपनी ग्रामर सुधार सकते हो, एंड देन यू कैन राइट अ वेल एसईओ ड्रिवन आर्टिकल। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको हटा देते हैं। रीडेबिलिटी के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी, आई थिंक। ओके, अब देखो, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि ये स्निपेट्स क्या होते हैं, ठीक है, कि हाउ यू कैन डिसाइड द वेरियस। देखो, डेस्कटॉप पे जब भी आपका गूगल रिजल्ट शो करेगा, ठीक है, तो आपका ये आपका टाइटल रहेगा, ये आपका वो रहेगी लिंक, ठीक है, और यहाँ पर आपके नीचे आप डाल सकते हो अपना मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो स्लैग आपका हो गया सनग्लास स्टाइल फॉर समर, ठीक है। टाइटल आपका हो गया ये, तो टाइटल में क्या है आपका, सबसे पहले दिखा रहा है ना आपको, आर्टिकल का टाइटल दिखा रहा है, टाइटल, सेपरेटर दिखा रहा है बाद में, सेपरेटर, एंड देन आपका जो वेबसाइट का नाम है द स्पॉट फैशन, वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, हियर आई हैव टॉक्ड अबाउट टॉप कूल सन ग्लासेस फॉर समर 2020 dot which is suitable for college going students as well as job professionals, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। इस तरह से आपको अपना स्लग किया है, एंड देन एसईओ टाइटल, एंड देन योर मेटा डिस्क्रिप्शन, देन यू हैव टू अपडेट इट। आफ्टर अपडेटिंग इट, अब देखो, जब भी आपका गूगल पे जब भी ये चीज आर्टिकल शो करेगा तो वो इस तरह करेगा, इसका ये टाइटल ये रहेगा,
लिंक ये शो करेगी एंड देन डेट भी शो करेगी कि आपने वहाँ पे इनेबल किया था। एंड देन आपका ये भी देख रहे हो मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपने डाला है, और इसके नीचे जो लेंथ होती है, ठीक है, वो ग्रीन शो कर रहा है। इट मीन्स इट इज गुड। ओके, इतना ही आपके टाइटल की और मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ होनी चाहिए। देन अपडेट कर दो, इट्स ऑल गुड। रीडेबिलिटी को आपको ग्रीन करने के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जो एरर्स शो कर रही हैं, ठीक है, इन्हें आपको रिमूव कर देना है एंड देन व्हेन दीज प्रॉब्लम्स विल बी रिमूव्ड, ओके, जब भी ये प्रॉब्लम रिमूव हो जाएंगे आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा, एक एसईओ रिटर्न आर्टिकल हो जाएगा अच्छे से। जब भी मोबाइल पे रिजल्ट दिखेगा तो मोबाइल पे इस तरह दिखेगा रिजल्ट, ठीक है। जब भी आप फोन से कोई लिंक खोलोगे तो आपका इस तरह से आर्टिकल दिखेगा। ओके गाइज, लेट मी नो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है यहाँ तक या नहीं। इफ यू आर फीलिंग बोर देन यू कैन जस्ट लेट मी नो एंड वी कैन हैव अ ब्रेक। Let me know in the chat box if you want a break, guys. I think you guys are feeling bored. Okay. So now I'm going to take a break, okay, of maybe I think 7-minute break, okay. Just go and wash your face, okay. So after this 7-minute break, we will again meet. 7-minute timer, okay. Okay. मड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरद्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रि पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः।
ललाट चत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्धबद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। प्रफुल्लनील पंकज प्रपंच कालिमप्रभावलम्बिकण्ठ कन्दली रुचि प्रबद्ध कन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा। स्पृशद्विचित्र कल्पयोर्भुजङ्ग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। निर्झरी निकुंज कोटरे वसद्विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाम भाल लग्न कः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो। Okay guys, welcome back to the session. I hope you guys are back with some energy. Okay, so let me share my screen again. Let me know in the chat box if you are with me. Type with you in the chat box. If you are with me, then type with you in the chat box.
so that I got to know about you, that you are still with me and learning something. Okay, Rishabh, thank you so much. Okay, today's session is, I don't know, it's kind of boring also, I guess. All the things are very theoretically, okay. That's why you may think that this session is a little boring or so, but these all the things are very important in perspective of SEO. Okay, so we cannot just ignore all these things. Bear with me, guys. You will have an amazing SEO experience for building your blog or any website. Okay. So now अभी तक हम लोगों ने क्या कर रखा था, अभी तक हम लोगों ने मोबाइल के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने ऐड कर दिया था, एंड देन देखो एसईओ एनालिसिस हमें बोल रहा है कि क्या और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम्स ये हैं, देखो यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है, इंटरनल लिंकिंग नहीं है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि आपके कुछ पेजेस जो हैं, ठीक है, मतलब कुछ इंटरनल, जैसे देख रहे हो ना ये सब लिंक्ड हैं, ठीक है, मगर हमें क्या करना है, हमें लिंक करना है अपनी जो हमने ऑलरेडी पोस्ट बना रखी है, ठीक है। जैसे स्क्वायर एंड डायमंड शेप फेसेस, ठीक है, इसको हम जैसे कि सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है लिंक, इसको लिंक पे कर देंगे, ठीक है। एंड देन हम इसको यहाँ पर डाल देंगे अपने कोई इनर लिंक, मतलब कि spotfashion.co.in में, जिसमें हमारा ब्लॉग फैशन देखते हैं ये, ठीक है। अब देखो ये जो हमने क्या किया, हमने एक एंकर टेक्स्ट को, ठीक है, इसी को ही क्या बना दिया, लिंक बना दिया, ठीक है, जो कि लिंक कहाँ कर रहा है, इंटर लिंक हमारे ब्लॉग के अंदर ही लिंक कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हुआ, इंटरनल लिंकिंग का एक पार्ट पूरा हुआ, ठीक है। देखो इंटरनल लिंकिंग वाला यहाँ से गायब हो गया ना, इंटरनल लिंक वाला गायब हो गया। अब देखो हम लोग बात करेंगे इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स की। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स से क्या है, जहाँ पर भी हमने इमेज यूज कर रखी है, देखो इमेज जैसे यहाँ पर यूज कर रखी है, यहाँ देखो ऑल्ट टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसको इमेज एसईओ के लिए जितनी भी आप इमेजेस यूज करोगे अपने ब्लॉग के अंदर, ठीक है, वहां पर आप उसका रिलेवेंट डाल दो, जैसे केसी नाइस्टैट, ठीक है, केसी नाइस्टैट सन ग्लासेस, ठीक है। तो ये अब देखो गूगल क्या होता है ना, गूगल के जो बॉट्स होते हैं वो इमेज रीड नहीं कर पाते। इमेज में क्या है, क्योंकि इमेज में कुछ लिखा नहीं रहता है, ठीक है, इमेज तो ह्यूमंस रीड कर पाते हैं, मगर गूगल को बताने के लिए कि भाई ये इमेज किसकी है, किस चीज की है, तो उसके लिए हम लोग ऑल टेक्स्ट यूज करते हैं। ऑल टेक्स्ट करने के बाद में देखो अब नीचे आओगे ना, देखो इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जो इमेजेस पे हमने क्या फिक्स कर, ऑलमोस्ट एक आई थिंक कितनी इमेजेस यूज कर रखी है हमने, एक ही इमेज तो यूज की है और उस पर हमने डाल दिया था, ठीक है। ओके, इमेज का हो गया, इसका भी हो गया, ओके। सो जितनी भी इमेजेस थी हमने उस पर यूज कर दिया है, ठीक है। तो इट विल गो अवे। और देखो फोकस की फ्रेज की लेंथ नहीं है, नो फोकस की फ्रेज लिख के सेट करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर लिखते हैं कूल सनग्लासेस, देखो कूल कूल सन GLASSES, देखो अब देखो हमारा एसईओ पूरा ग्रीन हो गया, देख रहे हो। आई होप यू गाइज आर एबल टू सी द एसईओ टर्न आउट टू बी ग्रीन, ओके। सो ग्रीन होने का मतलब क्या है कि हमारा जो ऑन पेज एसईओ है वो एकदम सही है, ऑन पेज एसईओ हमारा एकदम सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी हमारे एकदम सही है। अब हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, वो हमारी प्रॉब्लम आ रही है रीडेबिलिटी में। तो जैसे हमारी ग्रामर चीज़ें सही होंगी, हमारा कंटेंट भी ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें पूरी एसईओ का कॉन्फ़िगर करना है, चीज़ें सही करनी है। अब देखो क्योंकि हमने अपना जो कीवर्ड था कूल सनग्लासेस, ठीक है, या फिर सनग्लासेस स्टाइल्स हमारा कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो कूल सनग्लासेस को हमने अपने टाइटल में भी यूज कर रखा है और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर रखा है, ठीक है। तो आपको लॉजिकली अपने कीवर्ड्स को टाइटल में और मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। देन होगा क्या, आपका जो आर्टिकल है वो रैंक करेगा, ठीक है, उस कीवर्ड के लिए। ये हमारा ऑन पेज एसईओ का पार्ट है गाइस, ठीक है। अब देखो हमने टाइटल टैग देखिए, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग के बारे में कर दिया, इंटरनल लिंकिंग के बारे में कर दिया। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इमेज में आपको देखो आपको जो इमेज अपलोड करनी है वो इमेज कंप्रेस करके करनी है, मतलब इमेज ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक वेबसाइट है tinypng.com, tinypng.com एक वेबसाइट है जहां पर आप इमेज अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे आप जाओगे और जो भी आपकी इमेज जहां पर भी है वो सिलेक्ट करो, ठीक है, वो अपलोड हो जाएगी एंड देन वो कंप्रेस कर देगा, ये वेबसाइट उसको कंप्रेस कर देगी। कंप्रेस करने के बाद में आप वो इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लो
डाउनलोड करने देखो 287 केबी की इमेज थी एंड देन वो इमेज कितनी की होगी 159 केबी की, ठीक है। उसकी इमेज क्वालिटी भी लूज नहीं होगी और क्या होगा वो इमेज कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्रेस होने से क्या होगा आपका जो वेब पेज है वो लाइट वेट हो जाएगा, जल्दी लोड हो जाएगा, ठीक है। उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इमेज को मैंने अपलोड करके फिर मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। नाउ अगर आप इस इमेज को यूज करोगे इस पे, ठीक है, इसकी जगह पे, तो क्या होगा वो इमेज काफी लाइट वेट होगी इससे, ठीक है, और कोई क्वालिटी भी लॉस नहीं होगी। ये देखो ये इमेज वही है बट इसका साइज छोटा है, इस इमेज का साइज छोटा है इन कंपैरिजन टू इट्स एक्चुअल साइज। देखो देखो ये 280 केबी की थी, ठीक है। ये देखो दो इमेज है मेरे पास, ठीक है। इस इमेज का जो साइज था वो 280 केबी है और उस इमेज का साइज जो था वो ये है 155 केबी। देखो आप लोग को दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो इस तरह से आपको इमेज ऑप्टिमाइज्ड इमेज ही अपलोड करनी है, ऐसी कोई भी इमेज आपको नहीं करनी, अपलोड कर देनी है, बिकॉज इट विल इंक्रीज द पेज लोड टाइम। ओके, इसके बाद में ये सब चीजें हो गई। देखो बिग की फ्रेज इन स्लग, की फ्रेज इन स्लग। अच्छा अगर हम की ओके ओके, अब देखो सन ग्लासेस स्टाइल्स डाल के देखते हैं एक बार अपना की फ्रेज, ठीक है। ओके मगर मगर हमारे यहाँ पर इसमें वो चीज़ ऐड नहीं हुई है, सन ग्लासेस सन ग्लासेस स्टाइल्स। ओके सन ग्लासेस स्टाइल्स, ठीक है ठीक है। ओके एसईओ में देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है अभी। की फ्रेज इंट्रोडक्शन, देखो जब भी आपके जो पहला पैराग्राफ है, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ में आपके आपके ब्लॉग के, उसमें वो की फ्रेज यूज होना चाहिए इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और जब कोई की फ्रेज है, ठीक है, वो उसको आपको ज्यादा बार यूज नहीं करना है अपने आर्टिकल में, 3 से 5 बार, ठीक है, जितना हो सके मिनिमम। देखो यहाँ पर क्या रहा है ना कि दैट्स आपको जो फोकस की फ्रेज है वो सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है, ठीक है, आपके पैराग्राफ में, आपके आर्टिकल में। आपको क्या करना है, आपको वो 3 बार करना है, 3 times फॉर अ टेक्स्ट ऑफ दिस लेंथ, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से जितना बड़ा आर्टिकल है उस हिसाब से आपने की फ्रेज को बार बार रिपीट करना है लॉजिकली, ओके। और सब हेडिंग में, अगर आप सब हेडिंग में अपना की फ्रेज डाल सकते हो, इट विल बी मच बेटर, ओके ठीक है। बाकी सब ठीक है, और जैसी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी गाइस, ठीक है, आपका एक वेल रिटन आर्टिकल फॉर्म हो जाएगा, वेल रिटन एसईओ आर्टिकल हो जाएगा, एंड देन दिस आर्टिकल विल रैंक फॉर द कीवर्ड दैट यू हैव सेट। ये देखो ये पूरा का पूरा आर्टिकल हो गया हमारा, ओके। अब देखो हमने पढ़ लिया इमेज कॉम्प्रेशन। फीचर्ड इमेज क्या होती है गाइस, फीचर्ड इमेज वो इमेज होती है जब हम इस आर्टिकल को शेयर करेंगे, जब भी हम इस आर्टिकल को, लेट मी टेक एग्जांपल, देखो मैं एक इमेज ढूंढता हूँ सन ग्लासेस की, ठीक है, इमेजेस पे जाता हूँ। ये जो इमेज है ना, ये इमेज में डाउनलोड कर लेता हूँ, दिस इमेज, या फिर ये इमेज अच्छी लग रही है, इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैं इस आर्टिकल में था, ठीक है। यहाँ देखो एक ऑप्शन है फीचर्ड इमेज का, फीचर्ड इमेज में इस इमेज को सेट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जाके अपलोड कर देता हूँ। इस मैंने इसको अपलोड कर दी, सेट फीचर्ड इमेज, एंड देखो ये इमेज फीचर्ड हो गई, अपडेट कर दिया। फीचर्ड इमेज क्या होता है, फीचर्ड इमेज से जब भी आप कोई अपना ये आर्टिकल सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, ट्विटर पे या फेसबुक पे या कहीं पर भी, तब एक इमेज उसके साथ में शेयर होती है, ठीक है। जैसे कि मैं अपने फेसबुक पेज पे जाता हूँ, ठीक है, और इस आर्टिकल को शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका कॉपी लिंक कर लिया, इस आर्टिकल को शेयर करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसका लिंक कॉपी कर लूंगा, देन मैं अपने पेज पे आ गया हूँ, ठीक है, फेसबुक पेज पे। मैं यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करूंगा,
देखो राइट अ पोस्ट बोल रहा है ना, ठीक है, थोड़ा मैं लिख देता हूँ. इफ यू want to know more about sunglasses styles for men, then check out this article. ओके, अब मैंने क्या कर दिया, देखो मैंने वो लिंक यहाँ पेस्ट कर दिया. ठीक है, मैंने वो लिंक यहाँ पेस्ट कर दिया और अभी फीचर्ड इमेज, देखो फीचर्ड इमेज आ गई ना. आर यू गाइज एबल टू सी द फीचर्ड इमेज जो मैंने लगाई थी वहां पर? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर गाइज एबल टू सी द इमेज. किस तरह से फीचर्ड इमेज आती है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑसम गाइस. तो देखा आपने किस तरह से आप आर्टिकल पे फीचर्ड इमेज लगा सकते हो और उस आर्टिकल जो भी शेयर करोगे तो हाउ कूलली यहाँ पर आप अपना भी इमेज लगा सकते हो. इट्स वर्क लाइक जैसे यूट्यूब थंबनेल. जैसे यूट्यूब थंबनेल होता है ना, वैसे इसी तरह ये भी चीज होती है. इसको कैंसिल कर देता हूँ एंड देन हम लोग इस पे आते हैं. देखो सब कुछ सही है, इट्स ऑल गुड. ठीक है, अपडेट कर देता हूँ. ठीक है, इसको अपडेट तो है ही. तो देखो आपने ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें सीख ली. देखो तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपको ऑन पेज एसईओ. हमने क्या किया था, हमने योस्ट एसईओ प्लगइन यूज किया था. ठीक है, जितनी भी इमेज हम इमेज एम्बेड कर सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं. ठीक है, जिस तरह से अपना कंटेंट अच्छा बना सकते हैं. और आपको हेडिंग टैग्स प्रॉपर्ली यूज करनी है. टाइटल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट H1 टैग होता है. ठीक है, अच्छा राइट. आप देखो एक हेमिंगवे एडिटर है गाइस. ठीक है, एक हेमिंगवे एडिटर है, बहुत अच्छा टूल है वो हेमिंगवे एडिटर. जब भी आप कोई अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, तो आप इस एडिटर में आप लिख सकते हो. ये एडिटर क्या करेगा आपको एसईओ के हिसाब से. ठीक है, एसईओ के हिसाब से आपको सजेशन देता रहेगा. ठीक है, आपको सजेशन देता रहेगा कि आपको किस तरह से आर्टिकल लिखना है. देख रहे हो किस तरह से किस चीज को आपको H1 देना है, किसको H2 देना है. ठीक है, तो दिस इज एन अमेजिंग टूल बाय विच यू कैन राइट very good SEO based article. Okay, or user friendly article, you can say SEO friendly article. So this is the tool Hemingway app. Okay, also you can use Grammarly to check various grammar mistakes in your article. Grammarly is a well known app. I think you guys all are aware of that. ओके, हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे. इसके बाद में आपको देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, इसको भी समझेंगे हम लोग, मगर अभी नहीं. ठीक है, इससे पहले ये चीजें हो जाए हमारी. तो हमने काफी चीजें हमने हेमिंगवे एडिटर के बारे में जान लिया. ठीक है, इमेज जो है हमारी कंटेंट के साथ में मैच करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम सनग्लासेस के बारे में लिख रहे हैं और हमारी इमेज कुछ और टॉपिक पे लगी हुई है. ठीक है, तो रिलेवेंट इमेजेस होनी चाहिए. अगर आप खुद की इमेजेस क्लिक कर सकते हो अपनी खुद की, तो इट्स वेल मोर गुड. ठीक है, आप स्टॉक इमेजेस भी यूज कर सकते हो. ठीक है, मैंने आपको हाउ टू क्रिएटिव्स में एक बहुत सारी लिंक दी थी जहां से आप स्टॉक इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, अपनी इमेजेस को आप कंप्रेस करो यूजिंग TinyPNG. ओके, इट विल डिक्रीज द पेज लोड टाइम. और जितनी भी इमेजेस आप यूज करते हो उसमें ऑल्ट टैग जो मैंने सबमिट लगाया था, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विल हेल्प गूगल टू क्रॉल योर इमेजेस बेटर. ओके, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है. ठीक है, देखो अब मैं ऑन पेज का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. ठीक है, कि हमने क्या क्या चीजें ऑन पेज के लिए जरूरी होती हैं. सबसे पहले तो आपकी जो वेबसाइट है वो SSL सर्टिफिकेट लगाना चाहिए उसमें. ठीक है, जो भी URL स्ट्रक्चर है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नंबर्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, इट शुड बी इजिली रीडेबल. यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, इट मीन्स कि पेज की स्पीड कैसी है और जो आपका कंटेंट आपने लिखा है वो कितना रेलेवेंट है. ये यूजर एक्सपीरियंस हो गया. किस हद तक वो रीडेबल कंटेंट है, इट मीन्स कि उसका फॉन्ट साइज वगैरह सही है, फॉन्ट स्टाइल वगैरह सही है, फॉन्ट फैमिली अच्छी है, इट इज रीडेबल कंटेंट. ठीक है, अपना टाइटल टैग कैसे यूज कर रखा है,
मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे यूज कर रखा है, आपने कीवर्ड को किस तरह यूज कर रखा है टाइटल में और मेटा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आपने हेडिंग टैग को कैसे यूज कर रखा है, ठीक है, इट मींस आपको हेडिंग टैग यूज करना है ना, H2 H3 इन सबको कैसे यूज कर रखा है। आउटबाउंड लिंक क्या होती है, जो आपके आर्टिकल से बाहर लिंक जा रही है, ठीक है, बाहर मतलब दूसरे सोर्सेस को लैंड कर रही है, उन्हें बोलते हैं आउटबाउंड लिंक। इंटरलिंकिंग वो होती है कि जो हमारे ही आर्टिकल्स पे लिंक हो रही हैं, इन्हें बोलते हैं इंटरलिंकिंग। तो आउटबाउंड लिंक्स भी बहुत जरूरी है, इंटरलिंकिंग भी बहुत जरूरी है। इमेज जितनी भी आप यूज कर रहे हो उसमें ऑल टेक्स्ट लगाना चाहिए और डुप्लीकेट कंटेंट यूज ना करो, ठीक है। इट मींस कि कभी भी कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल्स ना लिखो। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ओके, यहाँ तक ऑन पेज एसईओ के बारे में सारी चीजें क्लियर है गाइस। टाइप व्हाट मी इन द चैट बॉक्स। ओके, तो इतनी जितनी भी चीजें मैंने आपको करके दिखाई, ठीक है, अभी तक जितना भी योस्ट एसईओ करके दिखाया मैंने आपको, ये सब हमारा ऑन पेज एसईओ में आता है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, इन फ्यूचर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन, जब भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे होगे तब, ठीक है। ऑल्सो अब मैं बात करूंगा ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हम लोग अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं, वो सारी चीजें जो हम अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। इट मींस जो हमने अपने पेजेस पे किया, अपने वेबसाइट के पेजेस पे किया, अपने वेबसाइट पे किया, उसे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ, क्योंकि हमने वो ऑन पेज किया। अब जो हम चीज ऑफ पेज करते हैं उसे हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ओके, तो ऑफ पेज एसईओ के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, चीजें क्या क्या है क्या नहीं है। ओके, कहाँ से स्टार्ट करें। Okay guys, till then if you want to ask anything you can just ask your queries also. If you guys want to ask anything you can just ask, or because I think off page SEO is a broad one topic. Okay, Ankita Singh said okay, alternative for Canva is Trello, okay, but Canva is very good to make your graphics. Okay, so I think I should take the session, I should take the off page SEO in the next session, because it's a broad topic and I have to cover a lot from scratch, okay. Also I have not completed the whole mind map, so I think you guys cannot relate the things in a manner I want to, okay. Okay, so right now you can just unmute yourself and ask your questions, okay. So I'm open for your questions guys. Alternative for Grammarly, okay, Grammarly is the best option you can choose, or you can choose for go for Hemingway Writer, the way, yeah, Hemingway. Okay, so you can use the Hemingway. It will show exactly what phrases you have to use, which voice you have to use to write a good article, readability score, and all the things. Okay, so you guys can just unmute yourself and ask question related to your assignment of previous sessions if you guys have any doubt related to that, because I will start the off-page SEO, which is an amazing topic related to SEO. So I will start that in next session. Till then, you can just ask your questions, or yeah, that's it. Okay, ऋषभ का क्वेश्चन क्या था? Can I, sir, sir, I cannot monetize this keyword, right?
No. You can monetize these keywords, because if the monthly searches are above 1000, okay, then you can monetize any keywords, because people are searching for it, and if you create content around it, you can monetize those keywords. Okay. Okay, Kajal, previous assignment. Okay, so what you have to do is you have to go into the group. Okay, and in the assignment section, I have updated all the assignment. Okay, just see. अगर आप ग्रुप पे जाओगे, फेसबुक ग्रुप पे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो असाइनमेंट लिखा हुआ है ना, असाइनमेंट, इस पे आप क्लिक करना। असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद में देखो थर्ड असाइनमेंट की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर लिंक भी मैंने दे रखी है, शेयर कर रखी है, ठीक है। इस लिंक पे सारी डिटेल्स हैं गाइस, थर्ड असाइनमेंट के बारे में। सेकंड असाइनमेंट की लिंक मैंने यहाँ पर दे रखी है। फर्स्ट असाइनमेंट की लिंक मतलब फर्स्ट असाइनमेंट तो मैंने यहाँ पर दे रखा है पूरा का पूरा, ठीक है, इसी में दे रखा है। ओके काजल, आई थिंक आपको यहाँ से आपका असाइनमेंट पार्ट मिल जाएगा। ओके, थर्ड असाइनमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा इस लिंक पे क्लिक करने पे, ठीक है। सेकंड असाइनमेंट की लिंक यहाँ से मिल जाएगा, एंड देन फर्स्ट असाइनमेंट यहाँ से मिल जाएगा। ओके ओके, वेलकम काजल। Okay, so if you guys do not have any question, you just guys can leave the session. Thank you so much for having with me for 1.5 hours. It's been great for on-page SEO. We have completed on-page SEO as of now. Then we will move on to off-page SEO. Why is Google Analytics not showing ad impression? Not showing ad impression. Why it will show ad impression? Ad impression. Because you are not running ad, that's why. Okay, welcome Rishabh and welcome Kajal. Okay. So I'm ending this session. Okay. Thank you so much guys for bearing with me for 1.5 hours. Thank you so much. Thank you so much, Sudhanshu.